Good morning, everyone. Welcome to my class again. As we have completed this revision worksheet that we have circulated to you in the PTM, uh, in that all the questions are completed. And that last question, there is one more or question that is left that we are going to solve today. The question is, if the value of a is given, that is 8 plus 3 root 7. आपको a की वैल्यू दी है, a is 8 plus 3 root 7, and it is also given that b is equals to 1 by a. That means there will be one more value b, and that is equals to 1 by a. That means it is the inverse of a. Then what will be the value of a square plus b square? यहाँ पे a2 और b2 लिखा है, actually ये a square और b square है. If you solve this question, here you have given the value of a की वैल्यू आपको दी है, क्या दी है? 8 plus 3 root 7, and you have also given b, and that is equals to 1 by a. तो a की वैल्यू यदि 8 plus 3 root 7 है, तो 1 by a क्या होगा? 1 upon 8 plus 3 root 7. Is it clear? I have just substituted the value of a here. b की वैल्यू 1 by a के बराबर है और a की वैल्यू 8 plus 3 root 7 है, तो I just substituted the value of a here. b is equals to 1 upon 8 plus 3 root 7. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now if we rationalize this denominator, यहाँ पे नीचे irrational number है, यदि मैं इसको rationalize करूँ तो we have to multiply by its conjugate, and the conjugate of 8 plus 3 root 7 is 8 minus 3 root 7. तो ऊपर multiply करेंगे और नीचे भी multiply करेंगे, ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हो, multiply करो और divide करो, ठीक है? इसका मतलब हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने जैसे कि इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया, तो ओवरऑल इट विल बी कैंसल्ड आउट, कैंसिल हो जाएगा. But if you simplify this one, this numerator, this denominator will be rationalized. Denominator किसमें convert हो जाएगा? Rational number में convert हो जाएगा. तो upside it will be what? 8 minus 3 root 7 only, and downside you can apply the formula. Which formula? A plus b into a minus b. So a plus b into a minus b is equals to what? Yes, anyone? What is the formula of a square minus b square? Yeah, very good. A square minus b square. Here a is 8, it will be 8 square minus 3 root 7 whole square. Correct. Now, if you further simplify this one, you will get 8 minus 3 root 7 as it is upon 8 8 just 64 minus 3 root 7. 3 root 7 into 3 root 7. 3 3s are 9, and root 7 into root 7 is 7. 9 7 ja 63. Correct. Therefore, the value of b. Therefore, the value of b is nothing but it is 8 minus 3 root 7. Is it clear? यहाँ तक सबको clear है? यहाँ पे किसी को doubt है तो बोलो. No, sir. ठीक है, यहाँ तक सबको clear है? Just a minute. Now we have to find the value. You have to find the value of, who is this? Better mute yourself. We have to find the value of a square plus b square. तो अब a square और b square दोनों फाइंड करना पड़ेगा. a की वैल्यू हमारा है 8 plus 3 root 7. तो what will be the value of a square? a square की वैल्यू क्या होगी? 8 plus 3 root 7 whole square. What is the formula of a plus b whole square? Dharma, mute yourself. Mute कर. Yes, sir. What is the formula of a plus b whole square? बोलिए, a plus b whole square का फॉर्मूला क्या होता है? a square plus b square plus 2ab. हाँ, तो यहाँ Plus पे 2ab plus b square. वही तो बोल रहा हूँ, a square plus 2ab plus b square लिखो या फिर a square plus b square plus 2ab लिखो, दोनों का मतलब तो एक ही होता है. If you apply this formula here, 8 plus 3 root 7 whole square, you will get what? 8 8 जा 64, that is a square plus 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 3 जा 24, 24 2 जा 48.
√7 यही आएगा ना, और प्लस बी स्क्वायर मीन 3√7 का होल स्क्वायर, तो 3√7 का होल स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 63, अभी तो हमने किया था, 3 3 जा 9 7 जा 63, and this can be further written as what, 64 plus 63, 4 plus 3 is 7, and 6 plus 6 is 12, 6 plus 6 is 12, तो क्या हो जाएगा ये 127 plus 48√7. This statement is clear or not? The value of a square is this much, ये हमारा a square का वैल्यू है. Similarly you can find the value of b square, b की वैल्यू दी है तो b square will be what, b square will be 8 minus 3√7 whole square, and if you expand this one you will get 64 minus 48√7 and plus 63, ये हो जाएगा आपका 127 minus 48√7. This is the value of b square. Now we have to find the value of a square plus b square. हमारे पास a square की वैल्यू भी है और b square की वैल्यू भी है. From first and second, the value of a square is 127 plus 48√7, and the value of b square is 127 minus 48√7. So this plus 48√7 and minus 48√7 will be cancelled out, and therefore this 127 plus 127, 7 2 ja 14, 7 plus 7 is 14, 1 carry, 2 plus 2 4, 1 5, and 1 plus 1 is 2. Therefore the final answer is 254. Is it clear to everyone or any confusion is there? Students, No, sir, no doubt. just write it now, and if anybody has any confusion regarding this solution, unmute yourself and speak. Okay, students, as we have completed revision worksheet also, now we are going to start solving NCERT exemplar. As we have completed chapter number 1 and chapter number 2 of NCERT exemplar, today we'll start with the solution of this chapter number 3. So let us move this exercise 3.1. Question number 1. Write the correct answer in each of the following. These are the MCQs. It's very simple. Point -3, 5 lies in which quadrant? You can answer very quickly here. -3, 5 कौन से quadrant में आएगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस में होता है और y प्लस में होता है. इट इज वेरी मच क्लियर. दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. किसी को कोई कंफ्यूजन है? देखो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं. वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स. इफ वी draw this axis, this is the first quadrant, this is the second one, this is the third one, and this last one, fourth one. यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, x और y. Here y x is negative, y is positive, and in third one both are negative, and in fourth one positive negative. यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है? नेगेटिव. सेकंड वन इज पॉजिटिव. कौन से में आ रहा है? सेकंड में. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. एनी कंफ्यूजन इन दिस वन? No, sir. Then signs of the abscissa. Abscissa का मतलब होता है, what is the meaning of abscissa? X coordinate. X की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? abscissa. And ordinate means y coordinate. क्या होता है ये? y coordinate. ठीक है. So what is the abscissa and ordinate of the point in the second quadrant? अभी हमने डिस्कस किया ये सेकंड क्वाड्रेंट में abscissa मतलब x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, और y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है. कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में. अभी डिस्कस किया ना. देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. तो ऑप्शन नंबर सी. Is it clear to everyone or any confusion is there? Why I have put a tick mark on this C? We know that in a second quadrant the abscissa x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, and the value of y is positive. That's why this option number C is correct. Is it clear? Yes, sir. Now point 0, -7. 0, -7 lies. कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 0, -7? So y axis. On y axis. किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, एक्सिस के ऊपर आएगा. जब x की वैल्यू 0 होता है तो y पे आता है, y की वैल्यू 0 होता है तो x पे आता है. ठीक है. तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है. That's why it will lies on y axis.
एनी कंफ्यूजन? ये तीनों क्लियर है, चले नेक्स्ट पे। चल आई रेज दिस वन। Yes, sir. नेक्स्ट, फोर्थ, पॉइंट माइनस 10,0। अब ये यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, इट विल लाई ऑन विच एक्सिस? Negative direction of हाँ, x-axis. पहले तो हम देखेंगे कि ये y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस के ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा लिखा है, तो माइनस में है तो क्या होगा? x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? Yes, sir. Then question number 5, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। एब्सिसा का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू, x एक्सिस के ऊपर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगा? कोई भी नंबर, 1. कोई भी नंबर हो Any सकता है ना? number. हाँ, यदि यहाँ पे ऑर्डिनेट होता तो क्या आता? 0। एब्सिसा की जगह पे मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, सपोज इन द एग्जाम आई विल आस्क व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, तो क्या लिखोगे? 0। बट हियर इट इज रिटन एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब x होता है, तो x एक्सिस के ऊपर x कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे देखो दोबारा पूछ लिया कि ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज व्हाट? 0। क्लियर? Yes. चले नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो एमसीक्यूज है ना सारे अच्छे हैं, करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा जो अभी हमने टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब क्वेश्चन ट्विस्ट करके देते हैं एग्जाम में तो फिर प्रॉब्लम होता है। दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग दिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट, कहाँ पे मिलते हैं? Origin. ये तो बुक में भी है। ओके, द पॉइंट सॉरी अ पॉइंट बोथ ऑफ whose coordinate are negative will lie in, दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं? Third. Third quadrant. क्वाड्रेंट में। अभी तक जो भी सम्स किए वो हमारे नॉलेज के हिसाब से होता जा रहा है, इसी में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 4, -5 and -3, -4 lie in second quadrant, lie in third quadrant, Do not lie in same quadrant. do not D. lie in the same quadrant, क्योंकि सभी के जो है एक ही क्वाड्रेंट में तो नहीं आएंगे सब, कोई प्लस माइनस है, कोई माइनस प्लस है। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो हमेशा कहाँ पे होगा? x एक्सिस के ऊपर होगा, और x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो कहाँ पे होगा? y एक्सिस के ऊपर होगा। then the point -5, 2 and 2, -5 lie in the same quadrant में तो होगा नहीं, ठीक है? ये -5, 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, एंड ये 2, -5 Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट में C. आएगा। सी वाले में 2, 5, -5, 2 इट विल कम इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है? इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. इरेज कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12। प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा, बैकग्राउंड नॉइज आपके आ रही है, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। जस्ट अ मिनट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आप देखो, थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे तो सारे थे, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया अभी। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट। क्या बोल रहा है कि यदि कोई एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जस्ट द परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब कोई पॉइंट P है, P यहाँ पे मान लो, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से दिस इज x एक्सिस, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है हमारा? 5 यूनिट है।
Is it clear? Mute yourself first. ओके, यहाँ तक क्लियर है? परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही होगा, 90 डिग्री एंगल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. दिस इज 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव एक्स डायरेक्ट नेक्स्ट एक्सिस. तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा. Am I clear? नेगेटिव पे आ रहा है तो यहाँ पे होगा. होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? अब बोलिए, आप म्यूट कर अनम्यूट करके बोलिए. Yes, sir. हाँ, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो देन द पॉइंट पी, पी का जो पॉइंट है वो क्या होगा? पी का जो पॉइंट है हैज एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट तो हमको पता नहीं है. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये इतना, ये किसकी वैल्यू? 5 ये एक्स की वैल्यू बता रहा है कि वाई की? coordinate. हाँ, ये x की. ये y की वैल्यू बता रहा है ना, इट विल बी y कोऑर्डिनेट -5 ओनली. इज इट क्लियर? No, sir. 5 और -5. -5 होगा ना बेटा इस साइड में. ओके ओके ओके, दोनों साइड है सर. दोनों साइड +5 और -5 दोनों होगा. करेक्ट, यू आर करेक्ट. क्योंकि ये नेगेटिव इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज दिस वन, D1. क्लियर? This solution is clear to everyone. Yes, sir. Now on plotting the point O 0, 0, A 3, 0, B 3, 4, C 0, 4 and joining OA, OB, BC and CO, what type of figure you will obtain? तो कौन से टाइप का फिगर बनेगा, ये तो प्लॉट करके देखोगे तो ही पता चलेगा. ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं. Sir, square. स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा, जो क्लियरली पता चल जाएगा यदि मैं प्लॉट कर दूंगा तब. देखो ये आपका आया y एक्सिस, x एक्सिस, इसको सिंपली प्लॉट कर देते हैं. प्लॉट करेंगे तो पहले तो 0, 0 यहाँ पे आएगा. ठीक है, O, फिर 3, 0, ये 1, 2, 3, 3, 0 will come here, then 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4 will come here. ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B और 0, 4 इट विल कम हियर. तो डिस्टेंस देख लो, यहाँ से ये बना, ये स्क्वायर ही बन रहा है. देखो यहाँ से यहाँ तक का 4 यूनिट है. ये भी क्या है, ये 3 यूनिट है. Sir, ये 3 ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है. तो रेक्टेंगल ना, Yes, sir. therefore it will be a rectangle. समझ में आया? तो थोड़ा सा यदि आपको ऐसे ही लगे तो रफ डायग्राम बना के देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा. डायरेक्टली ऐसे बोलोगे तो हो सकता है आपका रॉन्ग हो जाए. इट विल बी अ रेक्टेंगल. Why it will be rectangle? देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90. ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट मींस इट विल बी अ रेक्टेंगल. Is it clear? Any confusion? हाँ. Now 14th one. P की वैल्यू है -1, -1, Q की वैल्यू है 3, -4, R is 1, -1 and -1, -2, -3 and T will be -4, 4 are plotted in the graph paper. Then the points in the fourth quadrant. Fourth quadrant में कौन कौन सा है? तो बहुत ही Q सिंपल. and R. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. राइट, ये तो एक तो ये आएगा फोर्थ में, ये भी सेम ही है, ये भी उसी में आएगा. और कोई है? नहीं है ना. ये वाला आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और ये क्या आएगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. तो क्या पूछा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा? तो Q एंड R. Q एंड R ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी. क्लियर?
Any confusion? Then question number 15, if the coordinates of 2 points P minus 2 comma 3 and Q minus 3 comma 5, then ये question बहुत अच्छा है. If the coordinates of the 2 point, ये P का point दिया है और ये Q का, तो क्या बोला है? What will you have to find abscissa of P. Abscissa of P is what? P का abscissa क्या है? -2. Then minus sign. Abscissa of Q. अब abscissa of Q is what? -3. क्या होगा ये? -2 minus of -3. It will be -2 plus 3. -2 plus 3 करने पे क्या आएगा? 1. देखो ये अच्छा एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आया. ऑप्शन क्या आएगा इसमें? आंसर इज 1. ऑप्शन नंबर बी. बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है. No, sir. हाँ, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 4 minutes. 4 मिनट है. 2-3 क्वेश्चन और हो जाएगा. Shall I erase this one? Yes, sir. हाँ, चलो नेक्स्ट. बाकी था आपका, लिखो. हो जाए तो बोलना फटाफट. Done. Then next one, क्वेश्चन नंबर 16-17 खत्म ही हो गए, खत्म ही कर देते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे. P 5,1 Q 8,0 0,4 0,5 and 0,0 are plotted in the graph paper. Then the points on x-axis. x-axis के ऊपर पॉइंट कौन सा होता है? जहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है. y की वैल्यू 0 इसमें होगी. y की वैल्यू 0 कहाँ पे है? O. O. क्या आएगा? Q and O. ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? सर ये 0,0 ओरिजिन में आता है क्या? ओरिजिन तो आता है बेटा. देखो ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी आ रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर भी आ रहा है ना. यस सर. दिस ओरिजिन, एक ओरिजिन ऐसा जो है कोऑर्डिनेट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी आता है और वाई एक्सिस के ऊपर भी आता है. तो यहाँ पे तो पूछा एक्स एक्सिस के ऊपर तो है ना बेटा, दिख रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर है. वाई एक्सिस के ऊपर भी है वो अलग बात है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर तो है ही है. ठीक है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव इन. एब्सिसा किसमें पॉजिटिव होता है? एक तो पहले वाले क्वाड्रेंट, First and fourth quadrant. हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ. करेक्ट. वेरी सिंपल. बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? 17 क्वेश्चन तक हमारा हो गया. इसके आगे क्वेश्चन है कि नहीं मुझे नहीं पता. होप इट दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज टुमारो. दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. अभी कितना टाइम था? Okay.